Hello students, good morning. Have a nice day. Today I am going to introduce chapter number 2 from Flamingo 10 plus 2 English Code. The name of the chapter is The Lost Spring. And the writer's name is Anis Zhang. I would like to highlight Anis Zhang is a well-known Indian woman author, journalist and columnist. She has written a lot of interesting and very sensitive lessons for us. She was born at Rourkela in Odisha in India in 1964. Please wait and watch and listen carefully to stories of Anis Zhang from the lesson The Lost Spring. Thank you. Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine and your study is going on well. You all are so laborious, so industrious, hence we can't say anything for you all. You all are using your time and spending your time in reading, writing and completing your course. Welcome now. Today I am going to introduce you all an interesting lesson from the book Flamingo. Flamingo, chapter number 2. That is The Lost Spring. The Lost Spring. The Lost Spring is the second lesson from the book Flamingo. And this lesson has been written by Anis Zhang. The Lost Spring means खोया हुआ बसंत। इसे हम सभी समझने का प्रयास करें। जब कोई अवसर आपके पास आता है जीवन में और यदि वो खो जाता है, आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो हम सभी बोलते हैं कि हम मेरे हाथ से चला गया। तो उसी अर्थ में हम समझने का प्रयास करें द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग इज एन इंटरेस्टिंग लेसन in which we will learn two stories. First one, Sahib-e-Ilam, and second one about Mukesh. I would like to highlight in easy way so that you can understand the subject matter in very easy way and you can give answer. The second part of the lesson, The Lost Spring, is about Mukesh. Mukesh is a mechanic. Mukesh is a mechanic and he belongs to Firozabad, UP. Do you know about Firozabad? Why is Firozabad famous for? What is the hazards in the factories of Firozabad? How the people of the Firozabad work from day to night and earn a little money? You have to think about the life and aim of Mukesh. हम सभी को मुकेश की नज़रों से देखेंगे फिरोजाबाद को. At first I would like to highlight about Firozabad. Firozabad is famous for bangle making industries. फिरोजाबाद कांच यानी चूड़ियों को बनाने के लिए पूरे भारत में जाना जाता है.
भारत में सर्वाधिक ग्लास की फैक्ट्रियां फिरोजाबाद में हैं। आप सभी जो देखते होंगे जितने भी प्रकार का बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ जो हमारी महिलाएं शादी के समय उसके बाद पहनती हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी जब पैकेज में भी देखेंगे तो फिरोजाबाद लिखा रहता है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्रीज, बैंगल इंडस्ट्रीज and different type of industries. But there is a very, we can say, dangerous stories about the life of the people of Firozabad who are working in these industries. Once Anis Young, the writer of this lesson, went to the house of Mukesh. She asked at first, "What is your aim?" Mukesh said her that he wanted to become an mechanical engineer. मुकेश चाहता है कि हम एक जीवन में अपने जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रियल पैसा है उसको बदलकर एक मैकेनिक बन जाए, क्योंकि उनके करीब से बड़े बड़े नगर जाने वाली सड़कें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पार करती हैं, क्रॉस करती हैं। इसलिए चाहता है कि हम एक मैकेनिक बन जाएं जहां अपने मन के अनुसार से काम करेंगे और अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मुकेश जो है सो एक अभी उसके सपने हैं मैकेनिक बनने का, लेकिन अभी जो है सो बैंगल इंडस्ट्रीज में काम करता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बैंगल इंडस्ट्रीज है वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इफ यू विजिट Firozabad, certainly you will find at every courtyard, in every street of Firozabad, the raw materials related to Bengal making industries. आप यदि फिरोजाबाद की गलियां का भ्रमण करेंगे तो आपको फिरोजाबाद में वहाँ कच्चे माल जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से चूड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के ग्लास वर्क तैयार किए जाते हैं। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य चल रहा है। मुकेश के दादाजी, उसके पिताजी, और अब मुकेश की बारी है कि वह भी अपने पारंपरिक पेशा को संभाले, यानी वह भी एक बैंगल मेकर ही बन जाए। लेकिन इसकी इच्छा है कि एक मैकेनिक बनूं, बिकॉज देयर आर मेनी डिफिकल्टीज एंड दे आर लूजिंग देयर ओन पीपल बिफोर गेटिंग मैच्योर्ड एज। सबसे बड़ी समस्या ये है इसमें से कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनके खपते चले जा रहे हैं, लेकिन आय का स्रोत जो एक बड़ा जरिया होता है नहीं प्राप्त हो रहा है। दे आर लीडिंग देयर लाइव्स इन पॉवर्टी, वे सभी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। Because there is a middleman between the raw material and prepared material. देखेंगे कि मिडलमैन, जिसको हम लोग बिचौलिया बोलते हैं, मिडलमैन की वजह से कच्चे माल उनको प्राप्त हो जाते हैं। तैयार मुकेश और उनकी फैमिली करते हैं, लेकिन पूरी आमदनी नहीं होती और हमेशा डेब्ट यानी कर्ज में ही डूबे रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा काम करने की वजह से ज़्यादा पैसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मुकेश को लगता है कि यह कारोबार छोड़ देना चाहिए और एक मैकेनिक बन जाना चाहिए, लेकिन यह पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा, अब गरीबी और ऋण दोनों से उबर नहीं पाते हैं, क्योंकि मिडिल मैन इस पर हावी है। समझिए, यदि कोई 25 रुपये में आपको कच्चा माल दिया है, आपने तैयार कर दिया, तो वो फिर आपसे 50 रुपये में लेता है, तो आपसे वो 50 रुपीज़ में ही लेता है और बाजार में वो 100 रुपये में बेचता है। समझिए, 25 रुपया वो इन्वेस्ट किया है आपके लिए और सिर्फ आपको 25 रुपये प्राप्त हुए, और लेकिन उसने बाजार में 100 रुपये में बेचा, यानी 25 रुपये पूंजी लगाता है, आपको 25 रुपया देता है और लेकिन 50 रुपये मुनाफा कमाता है। इस बीच में जो वर्कर्स हैं
जो विलेज पीपल हैं जैसे मुकेश, उनका फैमिली गरीबी का शिकार रह जाता है और कभी इनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती, इसलिए गरीबी की जीवन जीने के लिए मजबूर है। एक बार की बात है कि एनिस जंग खुद उनके गांव पहुंचती हैं, जहां उनका हम सभी कहते हैं एल्डर ब्रदर्स वाइफ, जिसे हम सभी भाभी कहते हैं, शी वॉज फाउंड इन भेल। उसे घूंघट में देखती है, क्योंकि जब कोई घर में बड़े आ जाएं और बड़ों के सामने हमेशा भेल यानी घूंघट लगा के रहते हैं, जो भारतीय नारी का संस्कार है और हमारे यहाँ भी है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि उनको जब जाने का मौका मिलता है गांव में, तो मुकेश अपनी फैक्ट्री में ले जाता है, जो कि घर के एक ढाबा मीन्स जानते हो, जहाँ चारों तरफ से अंधेरा हो, रोशनी नहीं के बराबर हो, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसी जगह में बैठकर लोग काम करते हैं, यानी कि ग्लास का वर्क करते हैं, उनके जोड़ने के लिए ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, CO की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम होता है और अंधेरा होता है। इस वजह से विभिन्न प्रकार के हाजार्ड्स, हानियाँ होते हैं जो नुकसान पहुँचाता है। फर्स्ट वन, दे लूज देयर आई साइट बिफोर गेटिंग एज। ध्यान देंगे, उम्र की प्राप्ति के पहले ही, यानी बुढ़ापे के पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। दे लूज देयर आई साइट। सबसे पहला क्या है, आई साइट प्रभावित होता है। दूसरे में देखेंगे, इनका जो है विभिन्न प्रकार का डिजीजेस, जब आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, रोशनी नहीं मिल रहे हैं और लगातार आप फैक्ट्री में काम करते हैं, तो विभिन्न प्रकार का डिजीज हो जाते हैं, जिसमें से आप TB भी शामिल कर सकते हैं, मल न्यूट्रिशन भी शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं हैं। तीसरा, दे बिकम ओल्ड इन यंग एज। ज़्यादा काम करने की वजह से, भोजन की प्रचुरता नहीं के कारण से, मन की आज़ादी नहीं के कारण से, वे सभी जवानी में ही बूढ़े की तरह लगते हैं अथवा बूढ़े हो जाते हैं, यानी एज्ड। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। चौथा है इकोनॉमिक समस्या, जो कभी उभर नहीं पाता है। देयर आर मेनी हजार्ड्स फैक्ट्री में काम करने के लिए। इस प्रकार से एनिस जंग ने मुकेश के माध्यम से फिरोजाबाद, जो कि ग्लास फैक्ट्री के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन वहाँ के लोग कैसे हैं, इसको हाईलाइट्स इस कहानी के माध्यम से किया गया है। और ये जो मिडिल मैन हैं, उनके कारण उनका पीढ़ी का पीढ़ी इस कारोबार में लगा हुआ है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदलती। अब इतने कर्ज हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, जिन पर मुकेश उबर नहीं पाता है। मुकेश डिड नॉट कम ओवर फ्रॉम द हैजार्ड्स, फ्रॉम द सिचुएशंस एंड फ्रॉम द डेप्थ। इस प्रकार से मुकेश का जो सपना मैकेनिक बनने का था, वो एक सपना ही रह जाता है और वह पुनः अपने जो पुराने फैक्ट्रीज हैं, जो दादा परदादा और पीढ़ी दर पीढ़ी, अंग्रेजी में फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो बैंगल मेकिंग का काम चल रहा है, उसी काम में लग जाता है और उसकी ज़िंदगी भी अब इसी तरह से बीतने वाली है। कहानी को आप सभी समझ गए होंगे कि मुकेश एक नौजवान लड़का है जो एक मैकेनिक इंजीनियर यानी मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन इतनी सारी समस्याएं हैं, उनके माता पिता की देखभाल करने हैं, गरीबी है, बीमारियां हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, मिडिल मैन है, जिसकी वजह से उसका सपना चकनाचूर हो जाता है और मुकेश एक बैंगल सेलर यानी चूड़ी बनाने वाला बनकर रह जाता है। आप सभी कहानी को बार बार सुनें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।